Hello, how's everyone? My voice is clear. Can you hear me, please? Answer me. Hello. Can you hear me? Yes, ma'am, your voice is clear. So, Maha is because today is the network problems and I'm waiting for a lecture uploading. Let her to upload the lecture, then I'll start for a while time. We will talk each other. So remember the last lectures, what I was teach you people. What was? Please reply through the message. We are attending class together. Okay, Aksa. So show. Tell me what was our last topic? Neelam, Aksa, Arifa, Sundas. Tell everyone, please. What was our topic last class? Neelam, Fatima, Arifa. Please answer me. What was our topic? What was our topic in last lecture? Nobody is replying. Tell me, my dear students, my voice is clear to you people. Neelam, Adila, Fatima, Arfa. How many of you are present? Mariam, Tariq, Ansab, Aksa, Neelam, Sumaya, Ansab, Nudrat, Sonia, Norin James, Hira, Shazad Anayat. So all of you are listening to me. I'm asking that what was our last topic? Oh my God, thank you, Lord. We are micro teaching. Good. Ma'am, we discussed micro teaching in the last lecture because we are teaching the unit number classroom practice sessions. So today we will talk about interactive teaching. Last time we talked about micro teaching. Today we will talk about interactive teaching session in the classroom. While we are teaching in the classroom, this is called practice sessions in the classroom. So today we will learn about interactive teaching. So everybody is familiar because in the very beginning, I told you people what is the interactive teaching. So interactive teaching involve facilitator and learners. इंटरैक्टिव टीचिंग ऐसी होती है जिसमें फैसिलिटेटर और लर्नर जो होते हैं बहुत सारे इन्वॉल्व. इनकरेज एंड एक्सपेक्ट लर्नर टू पार्टिसिपेट. क्या करते हैं? इनकरेज करते हैं और क्या करते हैं? जो फैसिलिटेटर होता है एक्सपेक्टिंग टू लर्नर पार्टिसिपेट इन द क्लास. So this is called interactive teaching. Use question to stimulate discussions. और वो क्या करता है? क्वेश्चन को यूज करके ऑडियंस को स्टिमुलेट करता है टू फोर्स फॉर डिस्कशंस, एम्फसाइजिंग द वैल्यू ऑफ आंसर. और वो उनके आंसर को भी वैल्यू देता है, उस पर भी फोकस करता है. गिव पार्टिसिपेंट हैंड ऑन एक्सपीरियंस थ्रू द इंटरेक्शंस टीचिंग लर्निंग. So mean the facilitators having a hand-on experience. He know what he is teaching and how the. So give participant hand-on experience. Use teaching aid to gain and retain attention. इसमें क्या होता है कि ऑडियंस के पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस होता है. फैसिलिटेटर नो हिमसेल्फ व्हाट ही इज टीचिंग एंड ऑडियंस नो व्हाट दे आर लर्निंग एंड व्हाट दे आर अबाउट टू लर्न. क्या सीख रहे हैं, क्या वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं. उनको पता होता है कि लर्नर को भी पता होता है और ऑडियंस को भी पता, फैसिलिटेटर को भी पता होता है और लर्नर को भी पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं. That is very quick practice, hand-on experience. Use teaching aid to gain and retain attention.
और उसमें हम टीचिंग एड्स को भी यूज कर सकते हैं ताकि हम ऑडियंस के अटेंशन को भी गेन कर सकें, ताकि ऑडियंस रिटेन भी कर सके। सो दिस वाज द दिस इज इंटरैक्टिव टीचिंग। इंटरैक्टिव टीचिंग हमने हमेशा सीखा कि इंटरैक्टिव टीचिंग हमने बहुत सारी डेफिनेशंस भी लर्निंग कॉन्सेप्ट में लर्न किया था, और इसको एज ए क्लासरूम प्रैक्टिस सेशन में हम यूज करते हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है, व्हाट वाज द पर्पस टू यूज, हमने यहाँ देखा कि इसमें ऑडियंस, फैसिलिटेटर और लर्नर जो थे बहुत इन्वॉल्व होते हैं। इनकरेज एंड एक्सपेक्ट लर्नर टू पार्टिसिपेट, उनको इनकरेज किया जाता है और उन लर्नर को से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करें, और क्वेश्चन को स्टिमुलेट करके उनके आंसर को भी एम्फसाइज किया जाता है। गिव्स पार्टिसिपेंट्स हैंड ऑन एक्सपीरियंस, इससे उनको हैंड ऑन एक्सपीरियंस होता है, पता होता है कि उन्होंने क्या पढ़ा, क्या सीखा और कहाँ, वेयर इज द गैप। सो यूज टीचिंग एड टू गेन एंड रिटेन अटेंशन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैंने रिपीट भी कर दिया है ताकि आपको अच्छे इंटरैक्टिव टीचिंग का पता चल जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? हेलो, इज माय वॉइस क्लियर नाउ? हेलो, रही है? Okay, जी मैम, clear now. Okay, so understand this interactive teaching. So where to start? मीन हमें कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे करना चाहिए? स्टार्ट विद क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स। हमेशा आपने अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियरली प्लान करना है और उनके आउटकम को भी देखना है कि व्हाट विल बी द एंड ऑफ ऑब्जेक्टिव जो मैंने बनाए हैं, व्हाट विल बी द आउटकम। हेल्प योर प्लान सेशन, हेल्प्स यू प्लान सेशंस। ये जो आप अपने ऑब्जेक्टिव बना लेंगे और आउटकम को भी देखेंगे तो ये आपको क्या प्लान हेल्प देगा, प्लान सेशन एंड हेल्प पार्टिसिपेंट बाय प्रोवाइडिंग क्लियर व्यू ऑफ सेशंस डायरेक्शंस। इससे क्या मिलेगी ऑडियंस को, ये आपका जो प्लानिंग सेशन है वो पार्टिसिपेंट को एक क्लियर व्यू देता है कि वो किस डायरेक्शन में और में मूव करेंगे और इस सेशंस को कैसे लेकर आगे फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, फॉलो एन आउटलाइन एंड प्रोवाइड कॉपीज टू पार्टिसिपेंट। आपने दूसरी चीज़ है, आपने अपने ऑब्जेक्टिव को देखना है, अपने ऑब्जेक्टिव और आउटकम को क्लियरली प्लान करना है, आपने उनको देखना है। ठीक है, उसके बाद आपने आउटलाइंस को फॉलो करना है और प्रोवाइड द कॉपीज टू, अगर आप चाहें तो उनकी कॉपी भी अपने ऑडियंस को दे सकते हैं ताकि वो उस पर क्या रहें, उस पर फोकस कर सकें। स्टे ऑन द पॉइंट व्हाट यू आर टॉकिंग, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट यू टॉक अबाउट ऑलरेडी। So if they want to make the note, they can make note as well. Okay, so periodically refer to the learning outcome during the session to remind everyone where you are and prevent people from getting lost. ये जो आपने उनको आउटलाइन दे दी है या कॉपी उनको प्रोवाइड कर दी है, इससे क्या होगा, इसके आउटकम क्या होगा कि ड्यूरिंग सेशन जो होगा कि एवरीवन को क्या है, रिमाइंड रहेगा कि वो क्या करेगा, उसको याद दहानी करेगा वो किस जगह पे बात कर रहे हैं, क्या बात हो रही है, इसमें क्या सेशन चल रहा है, ताकि लोग बीच में इंफॉर्मेशन की सीक्वेंस को भूल ना जाएं। ठीक है, तो पीरियडिकली वो क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वो उसके साथ फॉलो करेंगे और उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट भी नहीं होगी और फॉरगेटिंग नहीं होगी और लॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, सो इंक्रीज पार्टिसिपेशन क्यों करेंगे, उसने कहा इंक्रीज पार्टिसिपेशन का क्या मसला, क्यों इम्पोर्टेंट होती है, व्हाई पार्टिसिपेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। रिसर्च shows people will listen for only 15 to 20 minutes without break. रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि लोग जो अटेंटिवली सुन सकते हैं विदाउट किसी ब्रेक के, वो 15 से 20 मिनट की इंफॉर्मेशन को वो ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। लर्न मोर व्हेन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोसेस व्हाट दे आर लर्निंग। आपने ज़्यादा कैसे लर्न करेंगे, जब आप उनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि व्हाट दे आर लर्निंग। आपने उनसे पूछना भी है कि आप क्या लर्न कर रहे हैं। रिटेन मोर इफ दे रिव्यू और यूज द इंफॉर्मेशन इमीडिएटली आफ्टर लर्निंग इट। दूसरे का वो ज़्यादा इसलिए सीख सकते हैं, ज़्यादा रिटेन कर सकते हैं कि जब आप उनसे इमीडिएटली उनसे फीडबैक लेंगे कि वो क्या लर्न कर रहे हैं। सो लेक्चरिंग क्या चीज़ होती है जी? यस एग्जैक्टली अक्सा, यू आर राइट। सो लेक्चर इज द डक्ट टेप ऑफ टीचिंग वर्ड।
कि एक स्ट्रॉन्ग एडहेसिव एक चीज़ है जो कि एक प्रॉपर कवरिंग देती है इन द टीचिंग वर्ड। आपने देखा लेक्चर एक बहुत अच्छा एक मेथड है जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को ज़्यादा ऑडियंस के अंदर और कम वक्त में हम प्रॉपरली डिलीवर कर सकते हैं। सो लेक्चर डिलीवर कॉन्सेप्ट, लेक्चर के जरिए हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते हैं। इट डिलीवर्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, एज आई टोल्ड यू पीपल। सो कन्वे इंफॉर्मेशन दैट इज डिफिकल्ट टू प्रेजेंट इन एनी एंड अदर वे। सो इसमें क्या है कि आप इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं जो कि दूसरे तरीके से देना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो लेक्चरिंग इज, but the matter is how to make it interactive. Interactive lecturing is always matter. आप लेक्चर देते हैं, आपको पता है कि लेक्चरिंग इज ऑलवेज आउटडेटेड एंड क्या है, लेक्चर इज आउटडेटेड एंड even outdated and is a passive learning way. Passive learning mean only like for example in this way I am the only one talking, you people are just responding me because we are having a online learning. So in this way we have a less time to participate, but at least I can get your opinion while you are sending SMS, while you people are sending me SMS, so I can understand that you people are understanding it well. But in during the class session it is very good method to you can quickly ask the students, to anyone to whom you think that is not paying the proper attention, or who is the persons who is feeling difficulty to understand. Maybe he raised the question, or maybe you can ask the question to the audience, those who are less motivated and not paying the attention. So during the class session, that is the benefit of the lecturing. But most of the time the students are already and participating well in the class, so they have a good chance to exchange their idea with the learner, with the facilitators, so both they can exchange their idea with each others. Avoid overuse, because क्यों इसका overuse से आपने avoid करना क्यों करना है? In a lecture your learner are passive, आपके learner जो होते हैं वो passive है, and you are the one active learner. आप एक्टिव हैं, आपके ऑडियंस जो हैं, आपके लर्नर जो हैं, दे आर पैसिव. सो डज नॉट गारंटी अंडरस्टैंडिंग, नो फीडबैक फ्रॉम द लर्नर. इसमें आपको कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किसको कितनी समझ आ रही, बिकॉज देयर इज नो फीडबैक. इजीली बोर द ऑडियंस अनलेस वेल प्रिपेयर्ड. इसमें यह है कि ऑडियंस जल्दी बोर हो सकते हैं कि जब आप उनको प्रॉपर प्रिपेयर करके नहीं देंगे. तो पॉइंट टू कीप इन माइंड, लोएस्ट रिटेंशन वैल्यू ऑफ ऑल टीचिंग टेक्निक्स, लोएस्ट रिटेंशन ऑफ ऑल टीचिंग टेक्निक्स. आपने किन माइंड पॉइंट को अपने ज़हन में लेकर, लोएस्ट रिटेंशन वैल्यू ऑफ ऑल टीचिंग टेक्निक्स. ठीक है, आपने उन चीज़ों को देखना है कि जिसमें लोएस्ट रिटेंशन हो रही है ऑडियंस की, उन टेक्निक्स को आपने देखना है, उन पॉइंट्स को अपने ज़हन में रखना. मेक मोर इंटरैक्टिव बाय इन्वॉल्विंग द ग्रुप बाय फ्रीक्वेंटली स्टॉपिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस. ठीक है, आपने उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को क्या करना है, इन्वॉल्व रखना बाय आस्किंग द क्वेश्चन. एंड स्ट्राइव फॉर 30 to 70%. आपने स्ट्राइव फॉर 30% एंड 70% स्प्लिट. आपने इंफॉर्मेशन को 30% देना है और 70% को ब्रेक करके आपने उनको एक्टिव डिस्कशंस करनी है. दिस वॉन्ट ऑलवेज बी पॉसिबल, ऑल्दो कि ऑलवेज अगर ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि कितने याद होगा आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कितने क्लासरूम्स लोग होंगे तो हम कितनी अच्छी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं. 50 से अबव होंगे, 50 होंगे या 30 से ज़्यादा हैं तो आपने देखा कि लेस पार्टिसिपेशन हो जाती है, क्योंकि डिपेंड ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता. जी, why use facilitation rather than lecturing in training session? हम ट्रेनिंग सेशंस में फैसिलिटेशन, लेक्चरिंग की बजाय फैसिलिटेशंस को क्यों रिकमेंड करते हैं, क्यों हम इस पे ज़्यादा इसको क्या कहते हैं इनकरेज करते हैं? पार्टिसिपेंट लाइक टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व. पार्टिसिपेंट क्या करना चाहते हैं, वो एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहते हैं. पार्टिसिपेंट वांट टू शेयर नॉलेज एंड आइडियाज़. सो पार्टिसिपेंट क्या चाहते हैं कि अपने आइडिया को और अपने नॉलेज को क्या करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं. दे वांट टू शेयर. यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट एंड आंसर ऑल द क्वेश्चन. आप हर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते. यू आर नॉट इनफ एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, इवन हाउ मच you prepared well, but all the time the facilitator is not always expert. Sometimes we need to relate the ideas of other as well, because learner can address question as well. So इसका मतलब है कि बाज़ का ऐसा भी होता है कि आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते, आपको जो लर्नर के क्वेश्चंस को भी एड्रेस करना पड़ता है. मे बी दे आर शेयरिंग वेल आइडियाज, मे बी दे हैव एन एक्सपीरियंस once they will. That's why
everybody, once the point is clear, to everybody try to participate in the on their point of view or by or their own experience point of view. So everybody is putting their idea together and to have a further complete learning. So keep group attentive and involved. इसका ये फायदा भी होता है कि ग्रुप जो होते हैं अटेंटिव भी रहते हैं और दे आर इन्वॉल्व ऑलवेज इन लर्निंग. So working in groups, work groups are workhorse of interactive teaching. आपने देखा है कि उसने कहा कि working in a group as the workhorse mean hard work of interactive teaching. आप जब मिलकर काम करते हैं एक टीम वर्क होता है and once you will learning together is वो कभी भी आपका एक क्या कहते हैं, आप क्या कर सकते हैं एक्सीलेंट लर्निंग जब आप करना चाहते हैं तो देन जब आप इकट्ठे मिलकर लर्न करते हैं तो आपकी एक एक्सीलेंट लर्निंग होती है. ग्रुप वर्क ग्रुप्स शुड बी स्टैंडर्ड इन एवरी ट्रेनिंग प्रोग्राम. वर्क ग्रुप शुड बी स्टैंडर्ड इन एवरी ट्रेनिंग ग्रुप. आप ग्रुप भी बनाएं लेकिन आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए. दैट इज द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम. यूजिंग वर्क ग्रुप्स स्टिमुलेट इंडिविजुअल. आप वर्क ग्रुप्स को क्यों यूज करते हैं? इसलिए करते हैं कि स्टिमुलेट इंडिविजुअल इनपुट, ताकि इंडिविजुअल को इनपुट को आप स्टिमुलेट कर उनको इनकरेज करें. लर्नर ऑब्टेन फीडबैक फ्रॉम द मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ताकि उनको डिफरेंट आइडियाज मिल जाते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाते हैं. ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर पीयर इंस्ट्रक्शंस. ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर peer instructions allow you to evaluate their learning. इससे उनको क्या एक और मौका मिल जाता है ताकि वो peer instruction यानी कि एक दूसरे से वो क्या कर रहे थे, गाइडलाइन ले रहे थे, एक दूसरे से अपने आइडिया को एक्सचेंज कर रहे हैं. allow you to evaluate their learning. इससे आपको मौका मिलता है कि आप अपनी लर्निंग को खुद से evaluate कर सकते हैं कि what you have knowledge actually is a standard recommended, other people are accepting it, what you have already and you are sharing in a group. So how to utilize work group? आप वर्क ग्रुप को कैसे यूटिलाइज? एक्सप्लेन द प्रोसीजर. आप उनको क्या करेंगे, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे. वर्क ग्रुप्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे? एक्सप्लेन द प्रोसीजर उनको बताएंगे, ग्रुप बनाएंगे. डिस्क्राइब टास्क को उनको डिस्क्राइब करेंगे. स्पेसिफाई द टाइम लिमिट, उनको टाइम लिमिट बता देंगे. आस्क फॉर सब्सक्राइब, उनको बोलेंगे कि कुछ लिख, अगर वो लिखना चाहते हैं तो लिख लें. रेकमेंड अ प्रोसेस, और उनको कहेंगे कि प्रोसेस स्टार्ट कर दें. मॉनिटर प्रोग्रेस, फिर आप उनकी प्रोग्रेस को क्या करेंगे, साथ साथ मॉनिटर करते जाएंगे. एक्ट एज ए टाइम कीपर एंड आंसर क्वेश्चंस. आपने उनको देखना है और उनका टाइम का भी ख्याल रखना है और उनके सवालों के जवाब भी देने के. वेयर दे हैव अ क्वेरी यू नीड टू एड्रेस देम. सो हैव ग्रुप्स रिपोर्ट टू एंटायर ग्रुप. हैव ग्रुप्स रिपोर्ट टू एंटायर ग्रुप. पूरे ग्रुप्स की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए. ठीक है. प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, और फिर इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस करेंगे, देखेंगे, सबसे पूछेंगे कि what was the agenda discussed with you, what is your point of view. You can then process the information to share and ask the group. So this is how to utilize work group. When to use work group? वार्म अप करने के लिए, प्रैक्टिस सेशंस के लिए, रिव्यू के लिए, ब्रेकअप लेक्चर्स. जब आप बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं कि रिव्यू करने के लिए भी आप ग्रुप बना के उनसे पूछ सकते हैं. जब आपने लेक्चर दे दिया, आप लोगों से रिव्यू करके उनके ग्रुप बना के तब भी फीडबैक ले सकते हैं. ब्रेकअप लेक्चर, जब आप लेक्चर से बहुत ज़्यादा सुना के once you think that audience is getting bored, then you need to break up the lecture. Complete assignment. इंटरैक्टिव टेक्निक्स. अब आप जब कर रहे हैं तो इंटरैक्टिव टेक्निक्स कौन कौन सी यूज कर सकते हैं? देयर इज अ लिस्ट ऑफ द टेक्निक एंड आई विल शेयर यू इन डिटेल इन आई डिस्क्राइब द फर्दर पॉइंट ऑफ दिस points. Think, pair and share. Give them the chance to think, let them to exchange their with each others and pair and then share with each others. So buzz session, it is a very quick session. ये भी एक इंटरैक्टिव टीचिंग टेक्निक है. बस सेशंस में क्या करते हैं, इसमें भी ग्रुप फॉर्म बना के उनको हम क्या करते हैं,
इंटरैक्टिव तरीके से उनके ग्रुप फॉर्म करके उनसे हम प्रैक्टिस करवाते हैं। केस स्टडी दे सकते हैं। केस स्टडी का आपको पता है, जैसे मैंने आपको बड़ा केस स्टडी को बड़ी डिटेल में भी पढ़ाया हुआ है कि केस स्टडीज़ क्या हैं और केस स्टडीज़ के क्या मेथड हो सकते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, आपको केस स्टडी का पता है। सिंस यू आर इन द नर्सिंग यू नो द केस स्टडीज़ क्या होती हैं। और being a nurse, once you are select the patient for preparing the NCP and providing the nursing care to the patient, you always follow the case study. So everybody is get familiar with this case study, and even I give you the detailed lectures about this unit case study, so you know very well about case study. Incident process कोई incident दे सकते, कोई scenario दे सकते हैं, ठीक है। Then you can ask the audience, make a group, give the any incident and a scenario, so they can discuss and in a group form, and give the solutions to that incident. What is the problem, how to solve it, etc. Question and answer period. So this is an other way of interactive technique, जिसमें क्वेश्चन आंसरिंग हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और आंसर क्वेश्चन से ऑडियंस के आंसर को पता करते हैं कि वो व्हाट इज देयर ओपिनियन, व्हाट दे हैव एन आइडिया एंड एक्सपीरियंस अबाउट द सर्टेन टॉपिक। शॉर्ट राइटिंग एक्सरसाइज, हम उनसे छोटी सी कुछ लिखने के लिए भी दे सकते हैं, नोट रिव्यू दे सकते हैं, कोई आप डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए कह सकते हैं। सो दीज आर द इंटरैक्टिव टेक्निक so which we can practice in the classroom sessions. So I think so we last time we learned about the micro teaching. That was very interesting topic, and as well interactive techniques we learn in very detail about the, so there is a lot of strategy, as I told you: think, pair, share, bus session, case study, incident process, question and answer period, short writing exercise, note review, and demonstrations. Incorporating interactivity. As you select activities, consider the learner want and need, number of participants, size and layout of the room. आपने इंटरैक्टिविटी के लिए इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करना है, देखना है कि आपने सबसे पहले देखना है सिलेक्ट एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटीज़ करवाना चाहते हैं, लर्नर कैसे हैं, उनकी वांट्स क्या, उनकी नीड्स क्या है, ठीक है, नंबर पार्टिसिपेंट कितने हैं, उनका साइज क्या है, एंड रूम की फैसिलिटीज आपके पास कैसी है। सो आस्क योरसेल्फ, आपने अपने आप से भी पूछना है, ये तो आपने ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप से क्या पूछना है कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू टीच दीज पीपल, कि मैं इन लोगों को क्या पढ़ाने को जा रही हूँ, क्या पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। डू आई वांट देम टू शेयर आइडिया एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर्स, ठीक है। हमने देखना है कि वांट टू शेयर आइडियाज, डू आई वांट देम टू शेयर आइडिया, क्या मैं उनको टाइम अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ कि वो दे कैन शेयर देयर आइडिया एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर्स। ये मैंने सोचना है कि मुझे ये भी देना है। जब मैंने अपना ये सेशन प्लान करना है तो मैंने इन चीज़ों के बारे में मैंने अपने आप से खुद से क्वेश्चन करना है, और ये क्वेश्चन शुड बी इन माई माइंड। डू आई वांट देम टू इंटरनलाइज समथिंग ऑन देयर ओन, ठीक है। ये भी देखना है कि डू आई वांट देम टू इंटरनलाइज समथिंग ऑन देयर ओन, कि वो अपने से, अपने माइंड के जरिए खुद से वो क्या कहना चाहते हैं, क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यू मस्ट नीड टू थिंक अबाउट इट बिफोर द सेशन स्टार्ट। डू आई वांट टू टेस्ट देयर नॉलेज, या मैं उनका नॉलेज टेस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। प्लान अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटी इनटू योर सेशन टू हेल्प पार्टिसिपेंट स्टे इंटरेस्टेड, ठीक है। आपने क्या करना है, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज को आपने इनटू योर सेशन टू हेल्प पार्टिसिपेंट स्टे इंटरेस्टेड। आपने वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज को प्लान कर लेना अपने सेशन में, ताकि जो ऑडियंस है, पार्टिसिपेंट हैं, वो क्या रहें, इंटरेस्टेड रहें, दे आर गेट इंटरेस्टेड एंड मोटिवेटेड थ्रू आउट द लर्निंग सेशंस। अंडरस्टैंडिंग हो गया? Understanding, dear student? So incorporate interactivity. जब आपने इंटरएक्टिविटी करनी है तो मैंने आपको बताया है कि आपने क्या करना है, आपने
एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ कराना चाहते हैं, क्या टॉपिक है, क्या कौन से लर्नर हैं, क्या उनकी नीड है, क्या उनकी वांट्स है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट देखेंगे, साइज देखेंगे, क्लास का रूम का लेआउट देखेंगे वो कितना है, अप्रोप्रिएट है, ऑडियंस कितने हैं, और क्लासरूम का क्या अवेलेबिलिटी किस फॉर्म की है, कैन यू एडजस्ट द ऑडियंस लाइट और एवरीथिंग यू कैन सी। फिर आपने अपने आप से पूछना है, जो मैंने आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बताया है कि आपने अपने आप से पूछना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पॉइंट था हमारा, ये जो हमने पीछे डिस्कस किया था, थिंक पेयर शेयर। जी, ये कितने मिनट का सेशन होना चाहिए? 5 to 7 मिनट का सेशन होता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कौन सी सेशंस होते हैं, माइक्रो टीचिंग है। माइक्रो टीचिंग के साथ हम क्या कर सकते हैं, ये वाला सेशन भी है जिसमें हम सोचने का मौका कर देते हैं, पेयर करने का एंड शेयर करने का। पॉज अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम, आप उनको क्वेश्चन दें या प्रॉब्लम को सिनेरियो दें। दिस शुड रिक्वायर अ पार्टिसिपेंट टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड और टू रिप्लाई, सिंथेसाइज, इवैल्यूएट व्हाट दे हैव लर्नड। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सेशंस के अंदर आपने पार्टिसिपेंट को क्या करना है, एक क्वेश्चन देना, उनका कॉन्सेप्ट जो है, पार्टिसिपेंट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट देयर ओन वर्ड, कि वो उस कॉन्सेप्ट को अपने ओन वर्ड में क्या करें, एक्सप्लेन करें, फिर अप्लाई करें, और टू अप्लाई और सिंथेसाइज, अप्लाई करना सिखाएं उनको, बताएं कि कैसे अप्लाई करना, ये है क्या, क्या अप्लाई होता है। फिर सिंथेसाइज, एज यू नो आई टोल्ड यू इन द ब्लूम टैक्सोनॉमी इन 1000 टाइम। सो सिंथेसाइज मीन, आपने जब आपने क्या नाम एनालाइज करना है, तो उसको क्या एनालाइज का मतलब होता है, किसी चीज को पार्ट के अंदर क्या करना, आपने अंडरस्टैंड करता है। सिंथेसाइज का मतलब है उन पार्ट को पुट टुगेदर एंड अंडरस्टैंड द होल concept, that was the mean, what was the different part of that, and now you need to make a synthesize to complete understand the complete concept or evaluate what they have learned, कि उन्होंने क्या लर्न किया। give participant 1 minute to think about their answer individually, आपने क्या करना है, पार्टिसिपेंट को 1 मिनट देना है ताकि वो उस पर सोचें, अबाउट देयर आंसर इंडिविजुअली। Have them pair with the partner to compare answers, उनसे कहें कि अपने आंसर को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखें, and ask them to share their responses with the class, और फिर आप उनसे पूछें कि अपने शेयर करें अपने responses, किससे पूछें, किससे, अपने क्लास फेलो से, एक दूसरे के साथ। बस सेशन जो होता है 10 to 15 मिनट का होता है, और ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन क्या है, डिवाइड पार्टिसिपेंट इनटू ग्रुप ऑफ 3 to 6 पार्टिसिपेंट। स्मॉल साइज ऑफ ग्रुप अलाउ ईच पार्टिसिपेंट टू कंट्रीब्यूट। ठीक है, आपने कर देना है 3 to 6 पार्टिसिपेंट के अंदर कर देना। ये एक स्मॉल ग्रुप है जिसमें आप क्या करेंगे, उनको पार्टिसिपेंट को कहेंगे टू contribute करें। Every individual participant should be contribute. Give the 3 to 8 minutes to consider a specific limit, problem or questions. Jennifer, you are very late. Present. Class is already half is finished. Give the groups 3 to 8 minutes to consider a specific limited problem or questions. सो आपने 3 to 8 मिनट देने हैं, और इसमें क्या करना है, कंसीडर स्पेसिफिक मिनट टू कंसीडर स्पेसिफिक लिमिटेड प्रॉब्लम एंड क्वेश्चंस। ठीक है, ताकि आप उस पर क्या कर सकें, कंसीडर करें। शॉर्टनेस ऑफ टाइम रिक्वायर्ड ग्रुप टू वर्क हार्ड एंड स्टे ऑन टारगेट। ये शॉर्ट टाइम जो देने का मकसद, जैसे हमने क्या पढ़ा था माइक्रो टीचिंग में, आपने शॉर्ट टाइम दिया था, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टनेस टाइम दे रहे हैं, ताकि क्या करें, hard work group to work hard and stay on target. Walk around the room to answer questions. आपने उन सबको फिर देखना अराउंड, और उनके अगर उनके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यू नीड टू आंसर देम। आस्क फॉर आंसर फ्रॉम ईच ग्रुप और प्रोवाइड आंसर्स टू आंसर टू ऑन एन ओवरहेड फिलिप चार्ट एंड बोर्ड। ठीक है, सो अगर आपने देखा कि आपने घूमना है, फिर आपने क्या करना, अराउंड द रूम जो है, आपने हर एक से आंसर टू आंसर क्वेश्चन, आपने उनके सवालों के अगर उनको क्वेरी है, डिफिकल्टी है, यू कैन आंसर देम। और फिर आंसर फ्रॉम द ईच ग्रुप, आपने हर एक ग्रुप से आंसर पूछना है, आपने सवाल करना है तो उनसे आंसर भी पूछना है। और टू प्रोवाइड द आंसर टू एन ओवरहेड
फिलअप चार्ट और बोर्ड। फिर आपने अगर चाहें तो आप क्या आपने जैसे आप ओवरहेड प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं, फिलअप चार्ट यूज सकते हैं, बोर्ड यूज करके उसके ऊपर उनको लिख सकते हैं, ताकि जिसकी जो क्वेरी है आफ्टर दैट आफ्टर द फिनिशिंग द सेशन यू कैन आंसर ऑल क्वेश्चंस। प्रोवाइड अकाउंट ऑफ एक्चुअल केस स्टडीज में हम क्या करते हैं, प्रोवाइड एक्चुअल अकाउंट ऑफ एक्चुअल प्रॉब्लम सिचुएशंस एंड इंडिविजुअल ग्रुप हैज एक्सपीरियंस्ड। सो प्रोवाइड अकाउंट ऑफ एक्चुअल प्रॉब्लम, और इसमें हम एक्चुअल प्रॉब्लम को देखते हैं, एक्चुअल सिचुएशंस को, इंडिविजुअल किया, ग्रुप हैज एक्सपीरियंस्ड। प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग अ टिपिकल प्रॉब्लम। इसमें हमारा मतलब क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, हम उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करते हैं, डिफरेंट एंगल से एनालाइज करके डिफरेंट एंगल से देखते हैं, उसका प्रोसेस करते हैं, फिर उसको हमने सॉल्विंग अ टिपिकल प्रॉब्लम, और फिर उसको उस तरीके से हम सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओपन एंडेड प्रपोजिशन दैट आस्क द बेसिक क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन समझते हो ना आपने, जो क्या जिसको वेरी डिटेल होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम डिटेल में पूछ सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। व्हाट वुड यू डू, solution must be practical, the best you can come up with the under the circumstances। उसका मतलब कि जब आपने उनसे पूछना है कि आप क्या करते हो, या आप ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, हमेशा आप प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ जाओगे, ना कि अंडर द सर्कमस्टांसेस, जो कि जैसा सर्कमस्टांसेस, जैसा प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंगली हम प्रैक्टिकली सोल्यूशन की तरफ जाएंगे कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हो और किस तरीके से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको सॉल्व कर सकते हो, या आपने कभी किया है तो आपने अपने एक्सपीरियंस में अपने ऑन वे से उसको लिखना है कि उससे आपका क्या मतलब है, आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रोवोकिंग controversy and debate on issue for which definite conclusion do not exist। ठीक है, तो आपने अगर कोई भी ऐसी अफेक्टिव मेथड में क्या आपने क्या कंट्रोवर्सीज को देखना है, कोई डिबेट है, इशू है, ठीक है, आपने उसका कंक्लूजन्स विच डेफिनेट कंक्लूजन डू नॉट एग्जिस्ट। बात करते ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम करते हैं तो उसके लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव होते हैं, हम उसके पर्सपेक्टिव, एवरी पर्सपेक्टिव को आपने देखते हुए आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो इंसिडेंट रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, इंसिडेंट प्रोसेस क्या है, मेथड ऑफ लर्निंग हाउ to solve problem and work out solutions by using actual incident that involve the real people in real situations, less formal, less demanding from the case form of case studies। इंसिडेंट रिपोर्ट आपको पता है कोई भी इवेंट हो सकता है, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, कोई भी हो सकता है, जिसमें आप क्या, ये भी एक लर्निंग मेथड है जिसके जरिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इसके सोल्यूशन पर हम काम करते हैं। वो एक्चुअल भी इंसिडेंट हो सकता है एंड दैट इज इन्वॉल्व फ्रॉम द रियल पीपल लाइफ एंड रियल पीपल सिचुएशंस। ठीक है, ये लेस फॉर्मल भी हो सकता है, लेस डिमांडिंग फॉर्म ऑफ केस स्टडी, ये थोड़ा उससे कम होता है, केस स्टडी से ज़रा लेस फॉर्मिंग होता है, फॉर्मल होता है। Question and answer period. Allow a certain amount of time for question at time beginning, middle or end. Depend करता है, that is amount of time for question at the beginning में भी हो सकते हैं, middle में हो सकते हैं और end में भी कर सकते हैं। Plan this time and tell participant about it in advance. Questions may be asked orally by individual, group or in writing। ठीक है, आप इसके लिए प्लान करेंगे, प्लान दिस टाइम, टेल पार्टिसिपेंट अबाउट इट इन द एडवांस। क्वेश्चन में बी आस्क्ड ऑरली बाय इंडिविजुअली, ग्रुप और राइटिंग। ऑरली भी पूछ सकते हैं, रिटर्न में भी पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं, ग्रुप से भी पूछ सकते हैं। ट्राई क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिंग इंडेक्स कार्ड एट द स्टार्ट ऑफ योर सेशन। आप कोई उनको इंडेक्स कार्ड दे दें, कोई आप उनको क्या कहते हैं, कॉपी बिफोर स्टार्टिंग द एनी सेशन। हमने देखा जब भी हमको ट्रेनिंग सेशन होता है हमें क्या दिया जाते हैं कि हमें क्या नाम है, कॉपीज प्रोवाइड की जाती हैं। आस्क पार्टिसिपेंट राइट डाउन अ क्वेश्चन दे हैव एंड रिटर्न इनटू योर बिफोर द ब्रेक। So then review their question while the participant are on break। आप उन क्वेश्चन जो आपने दिए हैं उनको कह सकते हैं आप लिखें, इंडेक्स कार्ड दे दें जिसपे वो लिख सकते हैं, जिसको वो, और फिर उनको ब्रेक दे दें, और ब्रेक के दरमियान आप दोबारा भी उनसे पूछ सकते हैं। जब ब्रेक हो जाए तो आप उनको टाइम दें, ब्रेक दें, ताकि वो अपने उस पर सोच सकें, उनके आंसर को फाइंड आउट कर सकें। Then when they return, answer their question while summarizing key point learned before the break,
use this as a transitions into the next sessions. Asking question is by open-ended question and close-ended question. Open-ended questions मैंने आपको बताया कि जिसमें हम clearly explanations होती है, open-ended question कहते हैं जिसमें हम हर चीज़ का जवाब होता है, and close में yes और no की तरह हम आंसर का क्वेश्चन का आंसर देते हैं. ठीक है. Ask question to get participant to think, analyze or evaluate. Prepare question ahead of time. आपने जब करने आपने उसके लिए पहले से क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे. क्वेश्चन शुड नॉट हैव अ सिंगल राइट आंसर. फॉर एग्जांपल, हाउ कुड दिस प्रोसीजर्स बी इम्प्रूव्ड और व्हाट प्रॉब्लम माइट अकर विद दिस टेक्निक. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन. कि आपने से पूछ रहे हैं, उनका माइंड चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप ये क्या इस प्रोसीजर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और आप क्या समझते हैं कि व्हाट प्रॉब्लम माइट अकर विद दिस टेक्निक, और इस टेक्निक से क्या प्रॉब्लम हो सकता है. Close-ended question have a short and definite answer, जिसमें yes और no का आंसर देते हैं. Work best when fairly rapidly in a series to break the participant out of passive mood. ये जब हमने इसको passive mood से आपने उनको break करना है, then you need to have a short close-ended questions. शॉर्ट राइटिंग एक्सरसाइज हम कैसे करा सकते हैं. गिव पार्टिसिपेंट अ कार्ड और शीट और पेपर आप दे दें उनको, कहीं के कुछ लिखे इस पे. आस्क देम टू राइट देयर रिस्पॉन्सेज, collect responses and review them. Clarify all misunderstanding and answer question. Mediest point 10 minute to 2 minute. 10 मिनट देंगे, 2 मिनट ऑफ राइटिंग, 8 मिनट ऑफ आंसरिंग डिस्कशंस. मीडियस्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, 10 मिनट टोटल देते हैं जिसमें 2 मिनट उनके क्या करते हैं, राइटिंग के होते हैं, और 8 मिनट उनके आंसरिंग एंड डिस्कशंस के होते हैं. यूज टू इमीडिएटली एक्सप्लेन पॉइंट दैट हैव नॉट बीन क्लियरली अंडरस्टूड. ठीक है, उनको बताएं कि उन पॉइंट को उनको इमीडिएटली आप उनको क्लियर करेंगे जो उनको समझ नहीं आया. ठीक है. आस्क द पार्टिसिपेंट टू राइट देयर लिस्ट क्लियर और मीडियस्ट पॉइंट. जो आपको कम, जो यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो मीडियस्ट और क्लियर नहीं है वो आप उनसे पूछेंगे कि कौन कौन से हैं. सो 3 मिनट समरी शॉर्ट आंसरिंग में फिर 3 मिनट की समरी है. यूज दिस टू क्लैरिफाई पॉइंट एंड असेस द डेप्थ ऑफ द पार्टिसिपेंट अंडरस्टैंडिंग. ये हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्लैरिफाई पॉइंट को क्लैरिफाई करते हैं और उनकी डेप्थ को असेस करते हैं कि पार्टिसिपेंट को कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है. आस्क देम टू समराइज द की पॉइंट्स ऑफ द सेमिनार. और एंड में आप कहेंगे उन पॉइंट को सेमिनार में क्या करें, वो समराइज करें. नोट रिव्यू में क्या 4 to 5 मिनट का सेशन होता है. कैन बी यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेमिनार. ठीक है, आप नोट रिव्यू से पूछ सकते हैं उन्होंने जो लिखा उन्होंने क्या सीखा है, कैसा, उनको रिव्यू करवा सकते हैं. कोई सेशन है, कोई ट्रेनिंग सेशन चल रहा है या सेमिनार है, किसी भी जगह पे आप करें तो आप नोट रिव्यू करवा सकते हैं कि उन्होंने कहाँ पढ़ा, कहाँ पे हैं, आप कहाँ तक पहुँचे हैं. आफ्टर अ ब्रेक और एट द एंड आप पूछ सकते हैं. गिव अ पार्टिसिपेंट 3 मिनट to read their note thoroughly and underscore और circle important point. आप उनसे क्या करेंगे कि 3 मिनट के देंगे ताकि वो अपने उसको पढ़ सके और फिर क्या करेंगे, अंडरस्कोर कर देंगे या फिर उनको सर्कल द इंपॉर्टेंट पॉइंट को सर्कल. मेक एनीथिंग दैट डज नॉट मेक सेंस. तो आप समझते हैं कि सेंसलेस है, इसका पता नहीं ये क्या चीज़ है. यू कैन आस्क मार्क द लोकेशन ऑफ मिसिंग इन्फॉर्मेशन. अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस रहेगी तो आप उसमें से कोई जगह रख लें ताकि आप दोबारा से पूछ सकते हैं. सर्कल द रूम आंसरिंग इंडिविजुअल क्वेश्चन. After they have completed the exercise, ask for questions so you can clarify question. Demonstrations में हम क्या करेंगे, demonstrations में क्या करेंगे. Demonstration is one of the most effective teaching method because its visual impact. ये क्या करता है, आप देख रहे होते हैं, ये एक विजुअल इफेक्ट देता है. डेमोन्स्ट्रेशन ये एक बहुत इफेक्टिव टीचिंग मेथड है जिसके जरिए आपको विजुअल इम्पैक्ट होता है और आप ज़्यादा अच्छा लर्न कर सकते हैं. विजुअल प्रेजेंटेशंस ऑफ वन और मोर टेक्निक प्रोसेसिंग स्किल्स. ठीक है, ये विजुअल प्रेजेंटेशन जो होती है क्या करती है, ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्रोसेस करते हैं या फिर कोई चीज़ को किसी चीज़ की स्किल को सीखना होता है तब हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं. you or a participant often assisted by others go through the motion of showing, doing, explaining. आप और आपके जो पार्टिसिपेंट होते हैं ये क्या कर रहे हैं, असिस्टेड बाय अदर्स. क्योंकि आपको भी कोई असेस कर रहा है, कोई आप किसी को असेस कर रहे हैं. तो बोथ आर यू आर असिस्टेड बाय अदर. गो थ्रू द मोशन ऑफ शोइंग. आप एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं आप क्या पढ़ा रहे हैं, दूसरों को क्या अंडरस्टैंडिंग होती है. डूइंग एंड एक्सप्लेनिंग.
इंट्रोड्यूसिंग एंड कंडक्टिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले गिव द रैशनल, एक्सप्लेन व्हाई यू आर डूइंग द एक्सरसाइज, ये क्यों करा रहे, एक्सप्लेन द टास्क विद कंप्लीट एंड डिटेल इंस्ट्रक्शंस, डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट, टेल देम हाउ दे विल कंप्लीट द टास्क। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में आप उनको क्या बताएंगे, डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट यानी कि टेल देम हाउ दे विल कंप्लीट द टास्क, एक्सप्लेन व्हाट इज टू बी रिपोर्टेड। जब आपने शुरू करना है या आपने एक्टिविटीज, आपने उनको रैशनल बताना है, टास्क को एक्सप्लेन करना है, आपने उनको डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, उनको पूछना है कि ये टास्क वो कैसे कंप्लीट करेंगे और क्या तरीका होगा, एक्सप्लेन व्हाट इज टू बी रिपोर्टेड, एक्सप्लेन हाउ टू स्ट्रक्चर देयर रिस्पॉन्सेज, मॉनिटर द एक्सरसाइज, स्टे नियर टू आंसर क्वेश्चन, ताकि आप मॉनिटर कर सको, ब्रीफ द एक्सरसाइज, हाईलाइट द की पॉइंट आफ्टर ग्रुप्स have given data। अदर प्रूवन टेक्निक्स को, ये तो हमने पढ़े रही ना, कौन सी सेशन पढ़ा था हमें याद है आपको बच्चों प्यारे? थक जाता बंदा, सर में दर्द होती है, पता ना। ये इंटरैक्टिव टेक्निक थी, ठीक है। और कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं? अदर प्रूवन टेक्निक, पीयर इंस्ट्रक्शन है, प्रैक्टिस सेशन है, डिस्कशन है, जॉब्स एड है, रोल प्ले है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, गेम्स है, फील्ड ट्रिप है, कंपटीशन है, असाइंड रीडिंग है, ठीक है। तो ये सारे मेथड भी आप यूज करके, ये भी प्रूवन टेक्निक है जो कि हम क्लासरूम प्रैक्टिस सेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीयर इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है? जी जी ठीक जाते, क्या थैंक्स जाते हैं हम भी, जी थक जाते हैं हम भी, ओके, हम भी, मैं भी थक जाती हूँ, बहुत बोल, अकेले ही बोलना पड़ता है, आप आराम से सुन रहे होते हो, मेरे सर में दर्द हो रही होती, बोल 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 के, बिकॉज कंटिन्यूसली speaking 1 hour it's really sometimes, because once you are present in the class, I can interact with you people, and sometime I can have a pause post, so that I can exchange your opinion with me, that what I'm asking, and I have at least थोड़ा रेस्ट। सो पीयर इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पीयर इंस्ट्रक्शंस में हम एक दूसरे से जो को बता रहे होते हैं, एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, सेम एज ग्रुप। प्रैक्टिस सेशंस, कोई भी प्रैक्टिस सेशंस कराना हो तो हम क्लास में ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंटरैक्टिव टेक्निक कब यूज करते हैं? पीयर इंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस सेशन कराना हो तब यूज कर सकते हैं, कोई डिस्कशंस करना हो या फिर जॉब एड्स को देखना हो, आप अपनी पीयर टीचिंग अकर व्हेन स्टूडेंट बाय डिजाइन टीच अदर स्टूडेंट। यस, ऑलराइट अदीला, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, गुड अदीला, आई फॉरगेट योर फेस। सो रोल प्ले है, जिसमें रोल प्ले में हम इंटरैक्टिव टेक्निक यूज कर रहे हैं होते हैं, इंटरैक्टिव टेक्निक यूज करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी एक इंटरैक्टिव टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम दूसरों के डिफरेंट ओपिनियन और आइडियाज को जानते हैं, या कोई गेम्स के जरिए हम इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। ये इससे क्या होता है, हम लर्न कर रहे होते हैं। फील्ड ट्रिप है, जैसे कोई चीज़ को ऑब्जर्व करके वहाँ का सिचुएशन में देख के, ये भी एक इंटरैक्टिव टेक्निक्स में आ जाता है। कॉम्पिटिशन्स है, और असाइंड रीडिंग, अगर आप देखें कि कौन सा अच्छा करता है। थैंक्स मैम जी, ठीक है अदीला, मैं तुम्हारे सारे कमेंट भी साथ साथ पढ़ रही हूँ, ठीक है, मुझे भी समझ आ रही है। सो इसकी समझ आ गई? पीयर इंस्ट्रक्शंस तो ऑलरेडी इसने बता दिया अदीला ने। प्रैक्टिस सेशंस में हम इंटरैक्शन, कोई भी सेशन प्रैक्टिस कराना हो, आपने क्या करना है, इंटरैक्टिव टेक्निक का यूज करना है। एंड कोई डिस्कशंस करनी हो, ये भी डिस्कशंस में भी इंटरैक्टिव टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कशंस में हम, ये प्रूवन टेक्निक्स हैं जो कि हम क्लासरूम के अंदर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जॉब एड्स हैं, रोल प्ले भी है, रोल प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोल प्ले के जरिए कि हम क्या कर रहे थे, वी आर डिलीवरिंग द मैसेज थ्रू द रोल प्ले, वी आर गेटिंग, इसमें ये भी हमारा एक क्या होता है, एक्टिव एक्टिविटीज, एक माइंड जो है वो माइंड को इंटरैक्टिव माइंड टेक्निक है, जिसमें, और फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी आपको पता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग समझते हो ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है पता है?
ब्रेनस्टॉर्मिंग का पता है? नो, ब्रेनस्टॉर्मिंग ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें हम डिफरेंट लोगों की ओपिनियंस जाने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछूं आपसे टीचिंग क्या है, यू विल टेल मी टीचिंग इज इंटरैक्टिव, अनदर विल टेल मी टीचिंग इज अ अनदर पार्ट ऑफ वे दैट टीचिंग इज अ क्या कहना चाहिए, there is a lot of definition, so everybody tell about their point of view that is teaching. So जो मोस्ट ऑफ आंसर होते हैं ना, ठीक है, जो सारे फेमिलियर होते हैं, जो मतलब समझ लिया कि जिसमें एक जैसे जो पॉइंट ज्यादा एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, दैट इज एक्चुअली कंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। यस, ग्रुप डिस्कशंस टू प्रोड्यूस आइडिया और सॉल्व प्रॉब्लम, वेरी गुड। ठीक है, इसके जरिए हम क्या करते हैं, आइडिया को और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये हम आइडिया प्रोड्यूस करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वेरी गुड। गेम्स भी आ जाती हैं, पता है गेम्स का? गेम्स माइंड को भी हेल्दी रखती हैं, ठीक है, माइंड एक्टिव रहता है, लर्निंग ज्यादा होती है, ठीक है, और क्या करती है, ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट रखती है, तो हम एक्टिव रहते हैं, ठीक है, स्लीपी मोड में नहीं जाते। फील्ड ट्रिप है, जब हम कहीं विजिट करने जाते हैं तो क्या होता है, फील्ड ट्रिप क्या होती है, उस जगह को हम ऑब्जर्व कर रहते हैं वहाँ, ये भी एक इंटरएक्टिव टेक्निक है, क्योंकि इसमें हमें बोर नहीं होना पड़ता, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, हम बड़े एंथुसियास्टिकली चीज़ों को देख रहे होते हैं, क्यूरियस होते हैं ये क्या है, कैसा हुआ, फिर हम उस इन्फॉर्मेशन को रिलेट करते हैं कि वहाँ पे खास चीज़ क्या थी, क्यों गए थे, उस जगह की क्या इंपॉर्टेंट क्या थी, ठीक है, ये सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। फिर कॉम्पिटिशन्स भी इंटरैक्टिव, तो हम एक कंपटीशन होता है तो क्या होता है, सब कोई कोशिश करता है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, तो कॉम्पिटिशन्स भी एक इंटरैक्टिव टेक्निक है, जब हम किसी दो ऑडियंस का कॉम्पिटिशन क्लास में भी करा सकते हैं कि आप देखें विच वन इज गुड, ठीक है। So always try to be a very the good learner is always very attentive and interested in always in learning, involved in learning। जैसे मैंने बताया था कि whether if you will stop learning whether at 20 or 80, you will be really out of, you will never grow, ठीक है, आप भले 20 में लर्न करना छोड़ दें या फिर 80 में, इट्स द सेम। जब लर्निंग स्टॉप कर देंगे, आप कोई काम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है यू विल नॉट स्टे एक्टिव। सो असाइन रीडिंग, आप कोई रीडिंग का कॉम्पिटिशन करा सकते हैं, कहेंगे कौन हु इज द वन गुड, ये सारी प्रूवन टेक्निक्स एंड दैट वी कैन यूज इन द क्लासरूम सेशंस। So summary, telling is not teaching, nor is listening learning। ना बताना ना सुनना, ये दोनों, बताना टीचिंग नहीं है और सुनना लर्निंग नहीं है। You must engage participant in learning activities that lead to a higher level of understanding and result in the participant ability to apply what he learned on the job। समझ आ गया? उसने कहा ना ही बताना टीचिंग है और ना ही सुनना लर्निंग है। जब तक कि आप प्रॉपर पार्टिसिपेट नहीं करते या इंगेज नहीं रहते लर्निंग एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है, तब तक आप बिल्कुल भी किसी, आपकी हायर लेवल ऑफ लर्निंग अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और उसके रिजल्ट इन द पार्टिसिपेंट एबिलिटी टू अप्लाई, और फिर वो जो आप अंडरस्टैंड करते हैं उसको अप्लाई भी करना है व्हाट ही लर्न ऑन द जॉब। सो इंटरैक्टिव टीचिंग इज अ टू वे प्रोसेस, एक्टिव पार्टिसिपेंट एंगेजमेंट और विद ईच अदर फैसिलिटेटर एंड कंटेंट, ठीक है। उसने कहा ये टू वे प्रोसेस है, जिसमें क्या है, वन इज एक्टिव पार्टिसिपेंट एंगेजमेंट विद ईच अदर्स, कि एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट एक्टिवली रहना है, द फैसिलिटेटर एंड द कंटेंट, तो तब ही जाके आप इंटरैक्टिव लर्न, आपने पार्टिसिपेट भी करना है, फैसिलिटेटर के साथ भी आपकी होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, और विद द कंटेंट, ठीक है। सो दीज थिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द समरी ऑफ दिस लेक्चर, होप यू अंडरस्टैंड वेल। Keep in mind, however, that interactivity is means to the greater and participant learning. The most effective learning involve leading participant to point of reflection on the content। इससे क्या मतलब होता है कि आज ये जो इंटरएक्टिविटी करवा रहे हैं, इससे क्या होता है, ग्रेटर एंड होता है, पार्टिसिपेंट की लर्निंग होती है, और सबसे बड़ी बात है जो कि लर्नर को जो क्या है, पार्टिसिपेंट को इन्वॉल्व रखती है, और आपका रिफ्लेक्शन ऑन कंटेंट, ठीक है, आपको पता चल जाता है व्हाट डज दिस मीन टू मी, इस मेरा इससे क्या मतलब है, हाउ कैन आई यूज दिस, दिस इज बेटर देन व्हाट आई एम डूइंग नाउ, दिस रिफ्लेक्शन इज गोल ऑफ इंटरएक्टिविटी। So my dear, thanks you very much for listening
all the informations. Hope you will keep it in your mind. Your midterm is hopefully at July के last week में आपका होगा, ठीक है. So be ready for your whole, because maybe after the midterm you don't have any classes of the teaching, and because almost courses is completed for the midterm. Before the midterm we will continue this, and the next classes maybe we will going to wind up this session. So my dear students and fellow, thanks you ma'am. So सबको अच्छी लर्निंग होगी. सो आज की समराइजेशन ये थी कि हमने क्या पढ़ा है. इंटरैक्टिव हमने क्या पढ़ा आज. बहुत पसीना आया, बहुत. ठीक है, क्यों रिव्यू करवा देती हूँ जल्दी से. हमारा टॉपिक था आज इंटरैक्टिव टीचिंग टेक्निक था, जिसमें हमें क्लासरूम प्रैक्टिस सेशन था. हमने देखा कि किस तरीके से इंटरैक्टिव टीचिंग क्या होती है, इसका क्या पर्पस होता है. हमने ये देखा कैसे स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है. फिर इंक्रीज पार्टिसिपेंट. रिसर्च ने क्या साबित हुआ कि अगर हम 15 से 20 मिनट कोई भी इंफॉर्मेशन विदाउट ब्रेक लेते हैं तो वो हमारे लिए एक अच्छी इफेक्टिव होती है. इससे ज़्यादा क्या होती है, गेट बोर्ड. अगर आपने उसमें इंटरैक्शंस नहीं किया तो क्या होगा, आपका बोरिंग हो जाएगा. लेक्चरिंग आपने देखा एक डक्ट टेप है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जिसमें हम कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते हैं, ठीक है. ये सारी आपने इंफॉर्मेशंस को जो कि डिफिकल्ट होती है दूसरे वे से, ये होता है लेक्चरिंग. आपने अवॉइड क्या करना है कि क्या है, जो आप पैसिव, आपके लर्नर क्या होते हैं, पैसिव होते हैं. तो आपने इसको इंटरैक्टिव बनाना ताकि वो बोर सुनते ही ना रहे, बल्कि क्या करते रहें, क्योंकि इसमें जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग गारंटी नहीं होती जब तक आप फीडबैक ना लें, जब अपने ऑडियंस को इन्वॉल्व ना करें. आपने पॉइंट को माइंड में रखना है, जो आपका लोएस्ट रिटेंशन वैल्यू ऑफ ऑल टीचिंग टेक्निक्स, ठीक है, उसको देखना है कि कौन सा लोएस्ट रिटेंशन कौन सी टेक्निक में होती है. आपने उस चीज़ को माइंड में रखना है और ट्राई टू आपने करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंटरेक्शन सेशन रहे, ठीक है. और क्या करना है, वाई यू फैसिलिटेशन रादर देन लेक्चर इज इन ट्रेनिंग सेशंस. आप लेक्चर की बजाय फैसिलिटेशन क्यों करते हैं, ताकि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहे, नॉलेज और आइडियाज जो पार्टिसिपेंट का शेयर कर सकें, ठीक है. क्योंकि आप सारी चीज़ों के एक्सपर्ट नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा दूसरों के पॉइंटों को अपने क्या करना है, एडजस्ट करना है. सो वर्किंग इन ग्रुप क्या है, इट्स अ हॉर्स वर्क, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग वर्क होता है जिससे आपकी ज़्यादा अच्छी लर्निंग होती है और आपको स्टैंडर्ड प्रोग्राम को देने के प्रोग्राम को बनाने के लिए भी आपकी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. यूजिंग वर्क ग्रुप, इसका मकसद क्या होता है, ठीक है. इसमें हम क्या करते हैं, यूजिंग वर्क ग्रुप स्टिमुलेट इंडिविजुअल इनपुट, लर्नर ऑब्टेन फीडबैक फ्रॉम द मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ऑल दैट, ठीक है. और क्या है, हाउ टू यूज यूटिलाइज, मैंने आपको पूरे स्टेप बताया, इसके 10 स्टेप हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है. क्यों करते हैं, यूज ग्रुप क्यों करते हैं, वार्म अप करने, प्रैक्टिस सेशन, लाइव ब्रेक लेक्चर, ब्रेकअप लेक्चर, रिव्यू, कंप्लीट असाइनमेंट, ठीक है. इंटरैक्टिव टेक्निक को मैंने बताई थी कौन कौन सी, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगी, मैंने आपको काफ़ी बता दिया है. जिसमें थिंक पेयर शेयर बस सेशन है, केस स्टडी है, इसकी आगे डिटेल मौजूद है जो कि मैंने आपको पढ़ाया है आपको, ठीक है. थिंक पेयर शेयर बस सेशन, केस स्टडी, इंसिडेंट प्रोसेस, क्वेश्चन एंड आंसर पीरियड, शॉर्ट राइटिंग एक्सरसाइज, नोट रिव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है. ये आगे उनकी डिटेल है, ये सारे सेशन जो मैंने टेक्निक बनाया. और इसके अलावा भी प्रोवन टेक्निक है जिसमें हमने इंस्ट्रक्शंस, पीयर इंस्ट्रक्शंस के बारे में सुना, पढ़ा. लास्ट 1 मिनट रह गया, इसका रिव्यू भी करवा दिया है. और
ठीक है, ये थी पीयर इंस्ट्रक्शन है, प्रैक्टिस सेशन है, डिस्कशंस है, जॉब, ये सारा मैंने आपको डिटेल में बता दिया अब आपको, और इसकी समरी भी बता दी है कि टेलिंग भी टीचिंग नहीं है, सुनना भी टीचिंग नहीं है। तो फिर क्या है कि एक्टिव एंगेजमेंट आपकी जो है थ्रू द सेशंस, यू मस्ट बी इन्वॉल्व योर अंडरस्टैंडिंग फॉर योर हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ताकि आप अपनी उन एबिलिटी को, उसके रिजल्ट में आपकी जो एबिलिटी होती है, आपने जो लर्न की होती है, आप उसको अपनी जॉब पर अप्लाई कर सकें। ठीक है, ये 2 वे प्रोसेस है जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट so much.